Good morning everyone. Good morning, ma'am. Yesterday we had done the chapter number 13, explanation of the chapter 13, right? कल हमने chapter 13 का explanation समझा था and today we will do the question answers of this chapter. What is the name of the chapter? Mr. Lion and the Special Soup. What is the name of the chapter? Mr. Lion and the Special Soup. Okay, so let's come to the book exercise. We will solve the question answers of this chapter and all other book exercise. Okay, you will fill the answers in your books also. Look at the first question. There are 3 multiple choice questions. In these questions you have the options. You will take the correct option. You will take the correct option. Number 1. Who are the owners of the restaurant? Okay, so restaurant के owner कौन है या कौन है? अगर 1 person है तो is, more than 1 है owner तो owners हो जाएगा and the helping verb will be are, right? So number A, Brer Fox, number B, Brer Possum, number C, both A and B. Restaurant के owners कौन थे? Brer Fox and Brer Possum, both are the owners. दोनों ही owners हैं. Okay, so take the number C because number C में क्या आ रहा है? Both A and B. इसका मीनिंग है आपका ऑप्शन A, ऑप्शन B. Okay, so दोनों ऑप्शन हमारे नंबर C में दिए गए हैं. So we will take the option number C. Yes, do in the books. Come to the number 2. बेटा आप भी बुक्स में हैंड टू हैंड करेंगे. टेक आंसर्स. नंबर 2. Who walks in his slow and grand manner into the restaurant? Dakshita, stand up. Who walks in his slow and grand manner into the restaurant? Grand manner में कौन एंटर हुआ था रेस्टोरेंट में? Mr. Lion. Mr. Lion. Who enters? Mr. Lion. Sit down. Number 3. What does Mr. Lion order? Mr. Lion ने क्या ऑर्डर करते हैं? Yes करने का? Special soup. Very good. Sit down. Mr. Lion orders special soup. Okay, now come to the question answers. These question answers we will do in the notebook. Okay, here I will explain only. Okay, who is hungry? Yes, Mr. Lion. who is hungry? Mr. Lion. Mr. No, Brer Rabbit. Brer Rabbit hungry थे ना स्टार्टिंग में जब वो ब्रेयर फॉक्स एंड ब्रेयर पॉसम से बोलते हैं कि मुझे और सूप दे दो, तो वो कौन थे? ब्रेयर रैबिट. हु वाज हंग्री? ब्रेयर रैबिट. डोंट राइट इट इन योर नोटबुक. वी विल डू इन द नोटबुक. ये बुक में नहीं लिखे, सॉरी. डोंट राइट इन द बुक. वी विल डू दीज क्वेश्चन आंसर्स इन द नोटबुक. ओके, ब्रेयर रैबिट. Now come to the question 2. Who says the following and to whom? कौन ये लाइन्स है? There are 2 statements. There are 2 statements. Now we will tell. हम क्या बताएंगे कि ये लाइन्स किसने? Who means किसने and to whom मतलब किससे कही. Okay, ये लाइन्स किसने किससे कही. Look at the number 1. Whenever you come, you break our plates and glasses. Who says this line? Check in your book. Check in your books. किसने कही थी ये लाइन? Mr. Rabbit. No, Brer Fox. Brer Fox. किसने कही थी ये रही. Brer Fox said this line to Brer Rabbit. ठीक है, किसने कही थी ये लाइन? Brer Fox. And to whom? To Brer Rabbit. Brer Rabbit से कहा था ना, जब Brer Rabbit ने कहा प्लीज मुझे सूप दे दो, I will wash your dishes. कहा था ना Brer Rabbit ने कि मैं तुम्हारी डिशेस क्लीन कर दूंगा, तो Brer Fox ने मना किया था. No, whenever you come, जब भी तुम आते हो, you break our plates and glasses. तुम हमारी प्लेट्स और ग्लासेस तोड़ देते हो. So this line Brer Fox says to Brer Rabbit. Okay, number 2. But I cannot eat the soup. ये लाइन किसने कही थी? ये तो सबको मालूम है. Mr. Lion. Mr. Lion. Mr.
lion. And to whom? Brer Fox. किससे गई थी? Brer Fox. Okay, now come to the number 3. क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे. Which of the following things is not in the story? इसमें से कौन सी चीज स्टोरी में नहीं है? कौन सी चीज नहीं है? ऑप्शन ए स्पून, ऑप्शन बी बाउल या ऑप्शन सी कप, टी कप. सो स्पून इन्वॉल्व है स्टोरी में? यस है, बिल्कुल है. एंड बोल है, सूप का बोल है ही, राइट. टी कप नहीं है. लेकिन व्हाट इज नॉट इन द स्टोरी? टी कप. टी कप स्टोरी में नहीं है. ठीक है, सो हम टी कप को सर्कल कर देंगे. सर्कल द करेक्ट आंसर. जो नहीं है, यस, डू इट इन योर बुक्स. जो नहीं है हमें उसे सर्कल कर देना है. ओके, ये टिक नहीं करना है. ओके, सिर्फ सर्कल करना है जो नहीं है. Now come to the think and answers questions. Number 1. Look at the question number 1. Why do Brer Fox and Brer Possum give Mr. Lion the best table at the restaurant? रेस्टोरेंट में मिस्टर ब्रेयर फॉक्स एंड ब्रेयर पॉसम ने मिस्टर लॉयन को बेस्ट टेबल क्यों दी? क्यों देते हैं वो? दे आर हैप्पी, वो खुश हैं इसलिए? दे आर स्केयर्ड, वो डरे हुए हैं. इट हैज द बेस्ट व्यू, और वो टेबल से सबसे अच्छा व्यू दिखता है, राइट. सो बी एंड सी बोथ आर करेक्ट. बी एंड सी बोथ आर करेक्ट. एंड ये ऑप्शन किसमें है? नंबर डी में. ये ऑप्शन किसमें है? नंबर डी में. So tick on the number D. Understood? Do this in your book. Done? Yes. Look at the question number 2. Why does Mr. Lion look at the menu? Mr. Lion मीनू की तरफ मीनू क्यों चेक कर रहे थे? Because he wants the best dish of the restaurant. ठीक है, वो चेक करते और फिर सबसे बेस्ट डिश अपने लिए मंगाते. ठीक है, come to the next page. Okay, here from here our grammar exercise will be started. थोड़ा सा grammar portion start है. ठीक है, so look at the given pictures. People A ask questions, people B answers. Then ये आपका conversation है. इन topics के ऊपर आपको conversation करना है. ठीक है, leave this. इन words को बोलना है आपको. Speak loudly. T-O-R-C-H torch. C-H-E-C-K check. P-O-R-C-H porch. So here C-H says ch. Here C-H says ch. C-H से क्या sound आ रहा है? ch sound. Okay. Next B-E-N-C-H bench. B-E-A-C-H beach. Beach. T-E-A-C-H teach. Here यहाँ भी सबसे ch C-H क्या sound दे रहा है? ch. Okay, come to the next. Read the following words aloud. P-H-O-T-O photo. Phone. Elephant. Nephew. Okay, and here P-S says fur. P-S says fur. Here where, when, why, which. So here WH says were. Here WH says were. Okay. ये आपका थोड़ा सा साउंड वर्ड्स हैं. आपको पता होना चाहिए कौन से 2 क्लस्टर वर्ड से कौन सा साउंड बनता है. ओके, कम टू द नेक्स्ट. ओके, हियर आर ग्रामर एक्सरसाइज स्टार्टेड. ओके, ए एंड द. आज आपको ग्रामर एक्सरसाइज में क्या सिखा रहे हैं? यूज ऑफ ए एंड द. ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस. पहले ही मैं बता चुकी हूँ ना.
पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वेयर डू वी यूज ए, वेयर डू वी यूज एन एंड वेयर डू वी यूज द. ओके, सो आई एम रिवाइजिंग इट अगेन. ए का यूज करते हैं व्हेन अ वर्ड एंड्स विद कॉन्सोनेंट साउंड. जब कोई वर्ड जब कोई वर्ड स्टार्ट होता है किससे? कॉन्सोनेंट साउंड से. जैसे BALL बॉल. सो व्हाट इज द फर्स्ट साउंड? फर्स्ट साउंड क्या है? बॉल. ब. कौन सा साउंड है? ब. सो हियर वी पुट अ. जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं वहां हम ए फिल करते हैं, एंड द वर्ड्स विच स्टार्ट्स विद वॉवेल साउंड्स देयर वी पुट एन. ओके, एंड वी यूज द. ओके, पहले एन का यूज देखेंगे. एन कहाँ करते हैं? जहां वॉवेल साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट होता है. देयर आर 5 वॉवेल्स, ए, ई, आई, ओ, यू. इनसे वॉवेल साउंड बनता है. इनके अलावा कभी कभी हमारे जो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स हैं उनसे भी वॉवेल साउंड बनता है. वो क्या होते हैं? साइलेंट. तो हमारा साउंड होता है सेकंड लेटर से स्टार्ट. लाइक एक तो ये है अपना है ई वाई ई आई, आ. ई से आ साउंड आ रहा है, सो एन आई. ओके, बट इफ आई राइट HONEST MAN, ऑनेस्ट मैन. ओके, अब हमें फर्स्ट वर्ड ऑनेस्ट देखना है, मैन नहीं देखना है. हमारे पास कौन सा वर्ड है? ऑनेस्ट. ओके, अब देखो ऑनेस्ट स्टार्ट तो आपका कॉन्सोनेंट से हो रहा है, बट इसका साउंड स्टार्ट ओ से हो रहा है. साउंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओ से. एच तो साइलेंट है, एच का साउंड ही नहीं है यहाँ पर. क्या है? साइलेंट. सो ये क्या है? ऑनेस्ट. सो यहाँ पर वोवेल साउंड आ रहा है. यहाँ पर क्या आ रहा है? वोवेल साउंड. सो हियर वी विल पुट एन. यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन. इसलिए हमें सिर्फ वोवेल्स ए ई आई ओ यू को ही ध्यान नहीं रखना है, हमें उनका साउंड रिकॉग्नाइज करना है. ओके, देन आफ्टर दैट वी विल पुट अ एंड एन. ओके, नाउ कम टू द यूज ऑफ द. द का यूज कहाँ करते हैं बेटा? फॉर द पर्टिकुलर थिंग, किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए. और व्हेन वी रिपीट द सब्जेक्ट, जब हम उस सब्जेक्ट के बारे में दोबारा बात करते हैं. जैसे मैंने कहा I have dash car. Okay, which article do I put here? A, because ये consonant sound है. कार, क consonant sound है ना, so a car. अब मैं इसी कार के बारे में दोबारा बात कर रही हूँ. ओके, dash car is blue. ओके, कार का रंग कैसा है? ब्लू है. सो हम अब इसी कार के बारे में बात कर रहे हैं. देन वी विल यूज द. ओके, जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में दोबारा उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो हम द का यूज करते हैं. तन्वी, लो क्या? ओके, एंड फॉर द पर्टिकुलर लाइक द मून, द अर्थ, जो अपने आप में ओनली वन होते हैं, जो अपने आप में ओनली वन होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं. ठीक है, कोई भी स्पेशल बिल्डिंग, ठीक है, द ताजमहल, द कुतुब मीनार. ओके, पर्टिकुलर मैगजीन हो गई, पर्टिकुलर न्यूज़पेपर हो गया, द दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया. ओके, तो वहां हम द का यूज करते हैं. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज. अब एक्सरसाइज पर आ जाइए. अब समझ में आया? पहले तो हम वर्ड देखेंगे. क्या करना है? लुक हियर, fill in the blanks with the help of given pictures and also use A and the accordingly. अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी नहीं दे रखा है. देयर आर द पिक्चर्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, देयर आर द पिक्चर्स ऑफ द सब्जेक्ट्स ओनली. क्या है? सिर्फ पिक्चर है, हमें आइडेंटिफाई करना है पिक्चर को. देन वी हैव टू फिल ए एंड द अकॉर्डिंग टू द वर्ड. ओके, सो देयर इज डैश डैश. हु इज दिस? मैन. ये कौन है? मैन है. और वन है, दिख रहा है ना पिक्चर में, वन ही है ना, खाली मैन है. अब देखो एम कॉन्सोनेंट साउंड है ना, एम से मैन, म कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो क्या करेंगे? देयर इज अ मैन, देयर इज अ मैन. ही लिव्स इन डैश स्मॉल डैश. व्हाट इज दिस? हाउस. ये क्या है? हाउस या हट, कुछ भी कह लो. ठीक है, सो ही लिव्स इन डैश स्मॉल हाउस. ओके, अब हाउस, ह साउंड आ रहा है, ह इज कॉन्सोनेंट.
एच कॉन्सोनेंट है एंड साउंड भी कॉन्सोनेंट वाला ही दे रहा है, हिंदी वाला जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, सो हम अ फिल करेंगे. ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस. He catches, look at the picture, is it singular or plural? Plural. There are two fishes, right? So यहाँ पर हम fishes fill करेंगे और जब plural होता है then हम a and the का use नहीं करते, a और n का use नहीं करते, ठीक है? So he catches fishes from dash dash. Look here, river. River कोई special name नहीं है, particular नहीं है, तो river पहले लिखेंगे हम R-I-V-E-R. Now A-N में से क्या आएगा? अ, because river, र sound आ रहा है ना, अपना consonant है, and sells them in the market. अब इसका मीनिंग क्या निकला? There is a man, एक man है, he lives in a small house, he catches fishes from a river and sells them in the market. उन्हें मार्केट में बेचता है. One day he catches dash big dash. One day he catches, अब यहाँ पर एक ही fish है, so I will write fish and here I will put the article a. क्यों? क्योंकि f fish consonant sound आ रहा है. Next, he is very happy. He thinks he will earn a lot of money. Money consonant sound है a and first time word use हो रहा है, special है नहीं तो the का use होगा नहीं. But to his surprise, अब देखो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फिश, जो उसने फिश पकड़ी वही फिश है ना, पिक्चर देखो सेम फिश है ना, तो हम अब किसका यूज करेंगे? ए एन में से यूज करेंगे या द का यूज करेंगे? द, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फिश, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसी फिश के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अब वो पर्टिकुलर हो गई. सो वी विल पुट हियर बट टू हिज सरप्राइज द, और व्हाट इज दिस फिश? द fish. Come to the next page. The fish starts speaking and tells him to leave it in dash dash. The river is same. We had already talked about this picture. इसके बारे में पढ़ा था ना अभी पहले, तो वो अब वापस से उसी के बारे में बात करेंगे, तो we will use the. So leave it in the river. Yes, now what will become here? Dash dash. ये man है, okay, and a man या the man? The man, because ये पहले हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं. Now subject is same. अब particular है ये, तो the. And first letter should be capital because we are starting a new sentence. The man feel sorry for dash dash. बताओ what is this? Fish. The fish or fish? The fish, because ये सेम वही फिश है जिसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं अभी, ठीक है? The fish. Completed? Complete? Yes. Done? Yes, ma'am. Have you all completed in your books? Yes, ma'am. Okay, come to the next exercise. Ma'am. Use of apostrophe. You have studied about this topic in the grammar, right? Apostrophe. Already studied. So we will do the revision of apostrophe here again. Okay? Apostrophe कहाँ use करते हैं? Apostrophe show position, ownership. Okay? Belonging show करती है, कोई चीज किसकी है, किसकी उस पर ownership है, वहाँ हम apostrophe का use करते हैं. Singulars होंगे जो s से end नहीं होते, वहाँ हम apostrophe के साथ s का यूज करते हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं नॉर्मली s से एंड होते हैं, s से एंड होते हैं, वहां पर ओनली अपॉस्ट्रॉफी यूज होता है. ठीक है, देखेंगे अभी. द सेंटेंस कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस. द टॉय, एक बार सेंटेंस ऊपर वाला देख लो. द टॉय कार दैट रोहन हैज इज रिमोट कंट्रोल्ड. सो रोहन की टॉय कार, किसकी ओनरशिप है टॉय कार पर? रोहन की है वो. ओनरशिप पोजीशन शो कर रहा है ना, तो हम इस सेंटेंस को शॉर्ट में लिख सकते हैं. कैसे? रोहन पर अपॉस्ट्रोफी एंड एस लगाकर, रोहन्स टॉय कार, और फिर इज रिमोट कंट्रोल. इट इज ऑलरेडी डन इन द बुक. ओके, एक्सरसाइज इज जस्ट बिलो. दिस इज द एग्जाम्पल ओनली. ओके, सो इसी तरीके से हमें जो सब्जेक्ट है उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके सेंटेंसेस को रीराइट करना है. ठीक है,
फिलअप्स है. ओके, दीज आर द फिलअप्स. एड अपॉस्ट्रॉफी विद द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक. सिंपल है, आपको तो बिल्कुल सिंपल दिया है. जो वर्ड्स ब्लैंक में है उनके साथ अपॉस्ट्रॉफी ऐड करना है ओनली, कुछ ज्यादा नहीं करना है. क्या करना है, जो वर्ड्स ब्रैकेट में दिए हैं उसमें अपॉस्ट्रॉफी ऐड करना है. ओके, सो राहुल ब्रदर इज वियरिंग अ रेड शर्ट. राहुल का ब्रदर. सो राहुल का के लिए हम क्या यूज करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी. राहुल तो एज इट इज आ जाएगा राहुल, एंड का के लिए क्या यूज होगा, अपॉस्ट्रॉफी एस. राहुल्स ब्रदर. अब इसका मीनिंग हुआ राहुल का ब्रदर. ओके, सो इसका मीनिंग क्या है अपॉस्ट्रॉफी एस का ही या के. ठीक है, next dash Sumi puppy is pulling her dress. Okay, this exercise you will do at home. Same है, सब में apostrophe s ऐड करना है. Mark it HW. Okay, do it yourself. Now short forms. Come to the short forms. We often use short forms when we speak to one another. Normally जब हम बोलते हैं, बात करते हैं तो हम short forms का use करते हैं. Let's check some short forms. I am. What is the short form of I am? I am. यहाँ पर apostrophe का use किया जाता है short form बनाने के लिए. I then apostrophe and M में से A हटा देते हैं, direct क्या लिखते हैं, M. What is the short form of he is? His. Apostrophe S. Short form of they will? They'll. They are? They are. Okay, these are the short forms. Okay, next. अब हमें इनकी short forms बनानी है. Let's do. He is. He apostrophe S. What is the short form of he is? He apostrophe S. I है remove कर देंगे. Yes, write down. Underline the words, bold words, and उसके ऊपर उसका correct short form लिख देंगे. They are. What is the short form of they are? First of all we will write they, then put apostrophe and R का A हटा देंगे and RE. RE. We will. So WEV सेम रहेगा. Apostrophe and इसमें से WI रिमूव हो जाएगा. वर्ब में से क्या आ जाएगा, डबल L ओनली. It is. So it apostrophe IS, S में से I रिमूव हो जाएगा. Put S ओनली. They will. Again they अपॉस्ट्रॉफी. यहाँ पर जैसे विल में से हमने जब शॉर्ट फॉर्म बनाया था WI को रिमूव किया था, यहाँ भी WI को रिमूव करेंगे एंड डबल L. ओके, डू इट फास्ट. एंड from this preposition, the next topic is preposition. We will do this topic in the next class. Okay, thank you.